Bismillahirrahmanirrahim. This is Sir Sibur Rahman, and this session is being recorded for those students who are willing to improve their spoken English and who are willing to improve their grammar, vocabulary, pronunciation, presentation skills, and overall, they want to groom themselves in a spoken English and they want to have a better career or they want to have a better communication. So, the first of all, I'm just going to guide you that how all the sessions are conducted and what things you guys are going to have on this platform. The first thing which you are on Zoom right now, all classes are conducted live on Zoom, and I'm also conducting a class live with all of you. And Zoom is just like a traditional classroom. You can ask questions, you can check, we can check students' work and by sharing a screen or in chats. And you can even give your presentations online and you can talk to each other by raising hands, by following instruction of your spoken and discussion teachers. So it is an absolutely wonderful app or software which has been designed with the having seen the modern needs of teaching online. And we have so many gadgets here, we can divide you into smaller groups for group conversation. So let's go ahead. This is the course outline which I normally teach. I normally have professional course which is of 2 months. Um, Basic is an optional part. If you want to be a part of it, that's very good. If you don't want to be a part of it, that's not a problem. You want to listen it recorded, I don't mind. But the phase from where your spoken skills activate is a professional course that is of 2 months, and then you have an advanced course. So we have 4 months in total you have to spend on our platform. And if you spend a few time for the basics, that's very good. I really appreciate. So, and this is the certificate which we provide after clearing basic course. It is an absolutely free course. You can watch it recorded. You can attend live. Like you have joined most of the students, they have joined me and they are attending their session live on Zoom. But free does not mean, I hate this word, but free means that we do not charge for it. We do not include it in 2 months fee. Uh, like you have joined me from today, but your fee will be charged from 28th of November because I'm starting my professional course from 28th of November. So this is the week of basic studies. So that will be free for all of you, right? But you have made payments, you have submitted your fee. Uh, don't you worry. That is in safe hands, and that will be charged from 28th of November. This is the your timetable. Please note it down. If you want to join me, you can get yourself registered. My session has started from 21st of November. Another is starting from 28th of November. And timings, morning till night, all timings are available. If you are working, you have different shifts. Ideal platform for all of you. You can join sometimes morning, sometimes afternoon, sometimes evening, sometimes night, whenever you want. You get free from your work and you have now you are feeling bored, you are free at 10 o'clock. You have a conversation hall where you will find no teacher. Only students are there talking to each other all over the Pakistan. Only females are there and they are sharing their life. They are sharing their point of view on different topics. In short, they all are speaking in English. So this is a free platform. This is a free conversation hall for all of you. And this is a lifetime membership. When you have completed your 4 months, I will not let you go. जब आपने 4 महीने मुकम्मल कर लिए, you are not allowed. I will not let you go because if you run away, if you go, you will lose everything. So it's better to keep practicing in that conversation hall. That's going to be a free of cost after 4 months of
complete course, right? And this course also includes graphic designing, video editing, and MS Office. From today, we had a very first class of video editing you may have attended. So tomorrow we will have a second class. So if students who are listening this session recorded, if they are still willing to be a part of this session, they can join me from 28th of November, and they can start their spoken English professional course. That course will end on, inshallah, 30th of January. I will end it on my birthday. That's gonna be on 30th of January, but I think that will 27th of January or 28th of January, you will have your grand test. Then you can decide your another journey of level 2, right? This is again before your eyes, grammar plus spoken plus discussion. We normally provide you 10 teachers. 10 टीचर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं सुबह से लेकर रात तक. Different language teachers, different discussion teachers, different spoken teachers. I am the same one who teaches grammar, but you will find 2 spoken teachers. You will find um, six discussion teachers you will find on our platform. So, and 1 skills teacher. So you have in total you have 10 teachers giving their services in just rupees 2000. आपके लिए मैं बता दूं हमारी फीस बढ़ने जा रही है. दिसंबर से नया बजट पास हो गया है. मंथली फीस 3000 फ्रॉम 1st December वी विल बी चार्जिंग. और अब उसके बाद भी ये पाकिस्तान का सबसे सस्ता तरीन प्लेटफॉर्म होगा जो आपको सुबह से लेकर रात तक पढ़ने की इजाजत देता है. 3 बजे से लेकर 11:30 बजे अभी बजेंगे इंशाल्लाह. नॉन स्टॉप क्लास चल रही है. स्टिल इट हैजंट एंडेड. नॉन स्टॉप. Nobody is providing. And the speciality, after every year our teacher changes, and every teacher comes with different themes, different activities. So if you have time, make the most of it, and I'm sure that in 2 months you will get fluency. That's why I've written 100%, and it's not lie. ये झूठ नहीं है. It's a reality. अब मसला ये कि बहन आपने किया हुआ है मैट्रिक और आपको हो गए 15 साल पढ़े हुए, तो फिर ये 100% आपके लिए नहीं होगा. केसेस भी है ना. यू आर अब एन एक्टिव स्टूडेंट, यू आर अ हाउसवाइफ, बट यू आर टीचिंग योर किड्स. लेकिन अगर आप इस तरह की है, आप सिर्फ किचन की होकर रह गई है 10 साल, अब आपको ख्याल आया चलो मैंने अंग्रेजी सीखनी है, मुझे बड़ा शौक है. अरे भाई तो फिर बहुत मुश्किल है बेटा. नामुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है. लेकिन तुम्हारे सीखने की कोई वजह भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ शौक है, तो फिर वो शौक ही रहने दो बेटा. अब लेकिन मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सीखने के लिए, वो क्या है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, ऑफिस में इंटरनेट पे कुछ करना चाहते हैं, अमेजोन सीखना चाहते हैं, ई कॉमर्स करना चाहते हैं. दे हैव सम प्लान्स, दैट्स व्हाई दे आर लर्निंग. एक्टिव माइंड्स आर देयर. लेकिन इफ योर ब्रेन इज डेड, तो बेटा फिर ये 100% फ्लुएंसी में अंग्रेज का बच्चा भी पढ़ाएगा तो कोई फायदा नहीं. ठीक है ना. तो पहले आप अपना केस भी देखिए कि बेटा आपका केस क्या है. ऐसा तो नहीं है कि आपने 15 साल से आप चूल्हे के आगे थी और अब अचानक से आप जूम के आगे आ गई. 15 साल बाद आपको याद आया. अब मैंने वो सर सैयद अहमद की बात याद आ गई, जो कौम मुसलमान अगर अंग्रेजी को नहीं सीखेंगे तो तबाह हो जाएंगे. और सर सैयद का जुमला आज याद आ गया. सर सैयद तो कह के चले गए थे, सीख लो अंग्रेजी. चले आगे चलते हैं. दिस इज द सर्टिफिकेट विच यू विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर completion of your first level of 2 months inshallah. And then this is the conversation hall which I'm talking about, 3 till 11:30. You can enjoy, and this is the certificate you will be provided after level 2 advanced level. And this is the free course which I am offering to all of my students, and I don't charge for it. 100% free courses I'm offering. ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एमएस ऑफिस पाकिस्तान के मशहूर ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर, एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट वो पढ़ा रहे हैं. आजकल उनकी टाइमिंग है 3 to 4. कोर्स आउटलाइन आपके सामने. ये वो सर्टिफिकेट्स है जो हम बाकायदा प्रोवाइड करते हैं आपको इन कोर्सेज के मुकम्मल होने के बाद. तमाम लेक्चर्स की लाइफ टाइम का मतलब जिंदगी भर की आपको एक्सेस मिल जाती है गूगल क्लासरूम पर. वेल ऑर्गेनाइज लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं. यकीन नहीं आ रहा जब तक देखोगे नहीं. इंटरनेट पे जब तक कुछ देखो ना यकीन मत करना बेटा. मैं आपको दिखा दूं बस. मैं उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ. आई हैव लेस टाइम एंड आई हैव टू डिलीवर अ लॉट ऑफ थिंग्स.
and then I have another class at 9 sharp, so I have to fly. Then another class at 10, then I have to fly again. वो अलग बात है, मैं कुर्सी पे बैठ के उड़ता हूँ, लेकिन फिर भी क्लास में वक्त पे पहुंचना होता है. बट इन ऑनलाइन क्लासेस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी ऑन टाइम. अच्छा बेटा, देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है गूगल क्लासरूम. किस तरह से कितने वेल ऑर्गेनाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. आप ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसा जा रहा होगा. लोगों से पूछ ले, मैंने लोगों के रिव्यूज बता रहा हूँ. इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह का कोई इदारा काम नहीं कर रहा जो आपके सामने. ये ये आपका फाउंडेशन लेवल है. जो मेरे 12 लेक्चर्स हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. मैं कुछ लेक्चर्स कभी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, कभी लाइव पढ़ाता हूँ, कभी नहीं पढ़ाता. आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं. बहुत अच्छे लेक्चर्स यहाँ पर, बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है. रेगुलर इरेगुलर वर्ब के ऊपर, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर. यहाँ पर इसका फाउंडेशन लेवल का ग्रैंड टेस्ट भी जो 27 नवंबर को इस दफा होने जा रहा है, आपका भी होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं सर स्टार्ट. स्क्रीन शॉट नहीं हो रही? स्क्रीन अब आ गई बेटा? नहीं आई। आ जाएगी. अब आ गई है। अब आ गई. देखें, ये फाउंडेशन लेवल है. ये फाउंडेशन लेवल के सारे लेक्चर्स हैं. आपको जो लेक्चर सुनना है आप बहुत आसानी से सुन सकते हो. उसके बाद जब आप फाउंडेशन लेवल से नीचे जाएंगी तो आपको मिल जाएंगे, ये देखिए टेंसेस का है. टेंसेस, जो टेंस में पढ़ाऊंगा वो ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर यहाँ पर अपलोड हुआ है. अभी यहाँ मैं चीजें और ऐड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की डिमांड पर, कुछ अपने दिमाग से. आई एम एडिंग मोर सम टेस्ट एज वेल एज. यहाँ पर मैं टेस्ट भी ऐड कर रहा हूँ. ये प्रोनाउंसिएशन सेशंस है जो होते रहते हैं, मैं रिकॉर्ड करता रहता हूँ. जब टाइम मिलता है यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ. तो आप बहुत सारे अपलोडेड है, आप सुन सकते हैं. वोकैबुलरी जब जब मैंने पढ़ाई वहाँ अपलोड कर दी. नोट्स आपके यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. ये लाइफ टाइम की एक्सेस है. और इसके अलावा यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, फिर आपको मिल जाएंगे स्किल्स के कोर्सेज. इस ये तो 3 कोर्सेज हम आपको पढ़ा रहे हैं. लेकिन अगर आपको एसईओ के बारे में पता है तो एसईओ का पूरा कोर्स यहाँ पर मौजूद है. एक टीचर हमारे पास पढ़ाते थे, अब चले गए, लेकिन उनके लेक्चर्स हैं. फ्रीलांसिंग मेरे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं. यूट्यूब अर्निंग के हवाले से कोर्स है. वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग. लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको ये मिल जाएगा. यहाँ पर एडोब प्रीमियर का पूरा, जो अब आज से लेक्चर नंबर 1 शुरू है, ये लेक्चर 2, लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड हुआ है. आप जाकर पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं. मतलब अगर आप ये सोचे यार मेरे लेक्चर मिस हो जाए, लेक्चर आपका मिस नहीं होगा. ठीक है, ये हमारा पेमेंट मेथड है. आपकी रजिस्ट्रेशन करवाइए. कोई मेरा एडमिन पर्सन नहीं है. आई एम वन मैन आर्मी. ये मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा है, 0345608182. दूसरा नंबर से मैं आपसे राब्ते में हूँ जो व्हाट्सएप के ऊपर है, 031022735564. जब आप लोग बाकायदा भी मेरे कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा. इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं. ठीक है, मैं किसी और नंबर से रब्ता नहीं करता. जब तक मेरी आवाज आप ना सुन लें, मेरा इस नंबर से आपसे रब्ता हो, प्लीज फीस मत जमा कराइएगा. स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं. हम सरसीप के असिस्टेंट है, एडमिन है. पिछली दफा फ्रॉड हो चुके हैं कि हम एसके से हैं, हम उनके एडमिन है. आप फीस जमा करा दें, डिस्काउंट ले लें, 50% ऑफ चल रहा है. ऐसी बातें करेंगे. आप किसी बात पर यकीन ना करें जब तक आप, सिर्फ पेमेंट मेथड मेरा एक ही है, इसी पे पैसे जमा होते हैं. ठीक है बेटा, आ गई बात समझ. ये आपके लिए मैं बता भी दिया है. हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, फॉर्मेट चेंज हो रहा है. दिसंबर से 3 घंटे सेशन कंपलसरी हो जाएंगे. एक घंटा स्पोकन, 1 घंटा ग्रामर, 1 घंटा डिस्कशन. 1 आवर स्पोकन, 1 आवर ग्रामर, 1 आवर डिस्कशन. 3 घंटे हम स्टूडेंट्स को कंपलसरी कर देंगे कि भाई आप लाजमी पढ़ें. 3 घंटे रोजाना, 3,000 रुपये माहाना. सुबह 10 बजे आना, रात 10 बजे जाना. वाह, गाना बन गया. ठीक है, और ये उसका पूरा शेड्यूल है. 5 दिसंबर से इन क्लासेस का आगाज हो रहा है. और अब 100 से 100% फ्लुएंसी गारंटेड इन 60 डेज. तो जो लोग अभी एडमिशन ले लेंगे, फायदा उठा लेंगे इस ऑफर से. अच्छी बात है. दिसंबर में आएंगे, मंथली फीस 3,000, 2 महीने की फीस, वन टाइम पेमेंट पॉलिसी होती है 6,000 प्लस 1,000 रजिस्ट्रेशन. 7,000 पे हमारा स्किल पहुंच जाएगा. फिर भी पाकिस्तान का सस्ता तरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी सर्विसेज दे रहा है. शायद इतने पैसों में कोई भी नहीं देता. अभी आप जाए किसी एक टीचर से सर्विसेज ले लें,
वो एक टीचर आपसे 3 डेज के 5,000 चार्ज करेगा, 3 डेज का 5,000, और वो 45 मिनट पढ़ाएगा। आप पूछे जरा मार्केट में जाकर, आपको पता चलेगा लोग कितना लूटते हैं। हम तो आपको 10 टीचर्स दे रहे हैं, पढ़ ले, और इस बात की गारंटी भी दे रहे हैं, मैं गारंटी कार्ड छपवाने वाला हूँ, गारंटी भी दे रहे हैं, मनी बैक गारंटी। लेकिन हमें आपकी तरफ से भी गारंटी चाहिए कि आप रोजाना 2 से 4 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप 2 से 4 घंटे रोज पढ़ेंगी, इम्प्रूवमेंट ना आए, पैसे वापस। आ गई बस, हाँ आप सही है। अच्छा, हम फिर एक ऐसे भी केस आते हैं, अच्छा हम पैसे जब दे देंगे जब हमारी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। जैसे हमारे अल्लाह पाक बड़े चचा थे, वो डॉक्टर थे, कहते थे दवाई ले जाओ भाई, जब सेहत याब हो जाओ, अगर फायदा हो जाए तो पैसे दे जाओ। कोई भी नहीं आता था, अब भाग जाते थे। चले, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। अब बेटा अगर फैसला कर लिया कि नहीं पढ़ना है, तो बस एक दफा जो कमिटमेंट कर लो, फिर अपनी बेगम की बस मैं सुन लेता हूँ, इसके अलावा मैं किसी और की नहीं सुनता, ठीक है। एक दफा जो आप कमिटमेंट कर ले, आप लोग तो किसी की भी नहीं सुनते, आप लोगों की सुननी पड़ती है। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। बेटा एक दफा फैसला कर लो, करना है, करना है तो बस करना है, कर कर ही फिर छोड़ना है। अगर ये सोच रहे हो 1 महीने कर ले, अच्छा चलो 2 महीने कर लेते हैं, देखते हैं, नहीं नहीं, ये सोच रखो कि मैं कर सकती हूँ और मैं इस दफा फाइनली कर लूंगी। हमें अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है, बस भरोसा नहीं है तो आप पर, कि आप लोग पाबंदी के साथ, बाकायदगी से के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ेंगे। आपको मैं एक हकीकत और बता दूं, फिजिकल क्लासेस में आप चले जाइए पढ़ने लैंग्वेज, इस दौर में 7 से 8 महीने लगेंगे उस इम्प्रूवमेंट में जो आपकी यहाँ पर 1 महीने में आ जाएगी। हकीकत है ये। ऑनलाइन सिस्टम इज 5 to 8 times faster than physical system. In online classes, you listen a lot. When you are listening a lot, you are improving a lot. In physical classes, you don't listen. Your attention diverts a lot because you focus too much on seeing instead of listening. Here you are only listening. This is the skill which is being polished all the time, all the time. That's why students start speaking within a month. Go and read the reviews on Facebook so you will believe in my statements. Don't bunk off your grammar class. Don't bunk off your spoken class. Grammar and spoken classes are two very important classes. You don't have to take it. You don't have to skip them at any cost. Don't make lame excuses. बहाने नहीं बनाए। किसी किस्म की प्रेजेंटेशन नहीं देनी सर, मैंने, भाई क्यों नहीं देनी, देनी है। सारी प्रेजेंटेशंस आपको ईमानदारी के साथ देनी है, हर प्रेजेंटेशन को देना है। यू डोंट हैव टू से सर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। सर आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, मैं क्या करूं। बेटा ये 6 पॉइंट्स को अपने जहन में बिठा लो। कीप ऑल दीज 6 पॉइंट्स इन योर माइंड। नंबर 1, listening is the key to speaking, which you are doing right now. Listening is the key. I advise all of you, try to listen for the first week. जब भी लैंग्वेज को स्टार्ट करें, मैं कहता हूं लिसनिंग से स्टार्ट करें और सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आप देखिएगा किस तरह से आपके अंदर इंप्रूवमेंट आपको महसूस होगी। लिसनिंग इज द की। यू आर ऑल्सो लिसनिंग राइट नाउ। अभी इसके बाद एक और आपका डिस्कशन सेशन होगा, आप उसको भी सिर्फ सुनना है। हाँ मौका मिले बोलो, मैंने मैंने मना नहीं किया बोलने से, मैंने एडवाइस किया है लिसनिंग, listening, listening, listening. Then start speaking after a week. मजा आएगा, फिर देखिएगा खुद ब खुद जबान खुलेगी। उसके बाद है राइटिंग। सर आई वांट टू बिकम अ गुड राइटर। सर मैं चाहती हूँ मेरी राइटिंग इंप्रूव हो जाए। फेसबुक के अलावा तुम किसी बुक को हाथ लगाती नहीं हो और फिर कहती हो राइटिंग इंप्रूव हो जाए।
कभी जिंदगी में कभी लाइब्रेरी में 2 घंटे गुजारे नहीं? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है बेटा, वो आपने एकेडमिक स्टडीज के लिए गुजारे थे। मान लो मेरी बात, तुम कभी अपने शौक से ये लाइब्रेरी नहीं गई होगी और वहां जाकर 2 घंटे तुम बुक रीडिंग तुम्हारा मशगला, तुम्हारी हॉबी नहीं रही होगी। नहीं है हमारे कौम के अंदर रीडिंग के जरसी, कोई नहीं पढ़ता हमारे यहाँ। वी डोंट रीड। हमें मिर्च मसाले वाली चीजें पढ़ने की आदत है जिसमें मजा है। हम रीड नहीं करते, वी डोंट रीड। अखबारें जहाँ खवातीन डाइजेस्ट तो सभी पढ़ते होंगे, फला की कहानियां, इसकी कहानियां, लेकिन नहीं, वी डोंट रीड स्टोरी बुक्स, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, वी डोंट रीड इंग्लिश नॉवेल्स, वी रीड कोर्स बुक्स। हमने कोर्स बुक्स को ही पढ़ा है पास होने के लिए, रट्टा लगा। दैट्स व्हाई वी हैव नो राइटिंग स्किल्स। आज भी आपसे कहा जाए लेटर लिख दे, एप्लीकेशन लिख दे, आपको यही नहीं पता होगा कि लेटर के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, लेटर कौन सी चीज लेफ्ट पर आती है, कौन सी चीज राइट पर आती है, कौन सी सेंटर में रहती है। स्टैंडर्ड पार्ट्स ऑफ लेटर्स नहीं पता, ऑप्शनल पार्ट्स ऑफ लेटर्स नहीं पता। डूब मरने का मुकाम है ये बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने बैचलर्स कर लिया, यू कैन नॉट राइट एन एप्लीकेशन, यू कैन नॉट राइट अ लेटर। लेकिन क्या करें, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड। इसमें क्या करें, सभी मर जाएंगे। हकीकत है ये, इट्स अ बिटर रियलिटी ऑफ अवर एजुकेशन कि हमें लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। यू कैन नॉट इम्प्रूव योर लैंग्वेज विदाउट टीचर्स इन पाकिस्तान। अगर आप ये सोचते यूट्यूब से सीख सकते हैं तो पता नहीं पूरा पाकिस्तान आज अंग्रेजी बोल रहा होता। यू ऑलवेज नीड two-way communication for language learning. You need someone to listen, you need someone to speak. You need two-way communication. YouTube lectures do not help you in speaking, they just improve your knowledge. Right? I'm telling you the bitter reality. शायद बुरी लग रही हो, ठीक है। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी आपको स्पोकन और डिस्कशन क्लास से मिलना शुरू हो जाएगी। ग्रामर पढ़ा दी गई है, पूरे 2 महीने में यही टॉपिक है मेरा। पहली और दूसरी बात पर आते हैं, सर आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट। तो बेटा आप दोबारा पैदा हो जाएंगे, क्या मतलब सर? एक्सेंट, कुदरती तौर पे जो एक्सेंट आपको मिलता है वो 1 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र तक मिलता है। फिर आपकी जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, जो हवा की नाली, आपका एपिग्लॉटिस, आपके टीथ, आपके टंग, हर चीज डेवलप हो चुकी होगी। अब आप सिंधी बच्चे खिलाएंगे, सिंधी माड़ू, पंजाबी, उर्दू, सराइकी, पख्तून, आपका लहजा सेट हो गया है। अब आप जब भी अंग्रेजी बोलेंगे ना, whenever you speak in English, your first language will be reflected. Baba, I'm saying right or not? Sir, what are you talking about? Why are you making fun of me? आपका पहला लहजा आएगा, भले से आप सही अंग्रेजी बोले, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत कम लोग देखे मैंने जो पंजाब में रहते हुए न्यूट्रल रहे, उनकी सराउंडिंग का उनके लहजे पर असर ना पड़े। आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल, जैसे आप अपने आर्टिस्ट को देख लें जो आपके टीवी पर आते हैं, उनके लहजों में कहीं ये नहीं बता सकते वेदर ही इज पंजाबी, सिंधी, सराइकी, पश्तो, पख्तून। यू कैन नॉट, बट सम ऑफ देम आर सिंधी, सम ऑफ देम आर पख्तून, but they speak very good Urdu. You cannot, with their accent, you cannot judge them. लेकिन हम लोगों का, क्योंकि हम लोग एक घर में रहने वाले लोग हैं, तो दैट्स वाई हमारा एक्सेंट हो गया बिल्कुल देसी। अब आप चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल एकदम गोरे की तरह हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप लंदन चले जाए 6 महीने के लिए, आप उनके साथ, गोरों के साथ अंग्रेजी में बात करें, योर एक्सेंट विल बी मॉडिफाइड। फ्लुएंसी, बेटा वादा करता हूं मैं, 7 दिन, 21 दिन और बहुत ज्यादा महीना, उसके बाद आप मुझसे बात कर लेना। आगे बेटा फ्लुएंसी, आप बोलेंगे जी सर। 7 दिन, 21 दिन, महीना, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। यू विल हैव फ्लुएंसी, लेकिन शर्त है, स्पेंड 2, 3, 4, 5 आवर्स ऑन जूम।
कंजूसी मत करना टाइम स्पेंड करने में. लिसन एज मच एज पॉसिबल एंड ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल. फ्लुएंसी में खूबसूरती जब आएगी जब आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे होंगे. यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल. इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन. मैं आज आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उस असाइनमेंट को फॉलो करें. सबसे पहले आप लोग बेटा आईपीए पे काम करें. ये आईपीए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स. हमें ये तो पता है कि देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी डोंट नो दैट देर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या बात कर रहे हैं सर? हकीकत है. हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? 44. अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और बहुत आसानी से आप उनको याद सुन सकते हैं. हमें सालों लग गए थे इनको, लेकिन अब आप एक क्लिक के ऊपर ये सारे के सारी साउंड्स को सुन सकते हैं. इट विल हार्डली टेक 3 minutes. 3 minutes में आप 44 साउंड्स अपने दिमाग में बिठा लेंगे. ये आपकी स्क्रीन पर आ गए. नहीं, मिल पैक नहीं, ये भी नहीं, इश्तेहार चल रहा है. ये आ गए. दिस इज द कंप्लीट चार्ट. दिस इज द कंप्लीट चार्ट ऑफ आईपीए. शायद जिंदगी में पहली मर्तबा देखा हो. आज सेशंस के बाद, अब ये मेरा आखिरी सेशन है अभी रात का, तो उसके बाद मैं सारे लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा और मैं इसके आपको तफसीली लेक्चर भी भेजूंगा. आज का सेशन भी भेजूंगा आपको और इसके तफसीली लेक्चर भी भेजूंगा जो बाकायदा आप जिसको सुनकर और अच्छा सा सीख सकते हैं. मैंने एक एक लेक्चर के ऊपर बहुत बहुत टाइम लगाया है, लेकिन अब जो है वो मैं आपको इस तरह से गाइड कर रहा हूं कि आपको बात समझ भी आ जाए, आप काम शुरू भी कर दें. दीज आर कॉन्सोनेंट साउंड्स, दीज आर वाउल साउंड्स. और जब दो वाउल साउंड्स मिल जाती हैं तो वो बन जाती है डिफ्टोंग्स. तो देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आपने बेटा इनको सीख लिया, समझ लिया, आप यकीन करें आप लाखों करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर होंगे. Most of the Pakistani language learners, they have no idea about IPA. और अगर आप इनको कर लेंगे, हार्डली 3 मिनट की रिकॉर्डिंग है बेटा. फर्स्ट लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग, दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो फॉर 4, 5, 6 टाइम्स आज रात सोने से पहले पहले. ठीक है. जब ये हो जाए आपका, तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप चले जाए कहां पर, फिर आप चले जाइए एक मैं आपको कोर्स रेफर कर रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन कोर्स. ये देखिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कोर्स. ये आपकी एक और खूबसूरत सी टीचर आ रही है. ठीक है. ये देखिए, ये आपसे कह रही है, इसकी पहली बात देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, नो आईपीए ट्रांसक्रिप्शन. वो मैंने आपसे कहा कि पहले आप वो कर लीजिए. फिर वो कहती है अब आप मुझे देखें और मुझे ऑब्जर्व करें. वो खुद ही कह रही है देखने के लिए तो आप देख सकते हैं, आई डोंट माइंड. वॉच माउथ मूवमेंट्स, रिपीट द वर्ड्स. अब वो किस तरह से बोल रही है देखें. I know that you can master the vowel sounds. Let's get started. First, let's try to make the sound A. अब ये आपको बता रही है शॉर्ट साउंड, दिस इज ए. अब ये आपको बताएगी हाउ टू प्रोनाउंस इट, फिर उसके बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाएगी. 6 आवर्स का ये पूरा इसका कोर्स है. अगर आप कर ले आइडियल हो जाएगा, जबरदस्त. मैंने आपको एक आइडियल कोर्स रेफर कर दिया, अब आपकी मर्जी आप करना चाहें. लेकिन मुझे आप जो इग्नोर नहीं करेंगे वो ये 3000 कीवर्ड्स हैं. मैं 3000 ऑक्सफोर्ड वर्ड्स पे जा रहा हूं जो लाजमी कर रहे हैं, जिसमें कोई रियायत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स आपका स्टार्टर है वोकैबुलरी का. आप कहते हैं आपको वोकैबुलरी चाहिए, तो भाई पहले इस वोकैबुलरी को जरा फारिग कर दो. क्या ये वोकैबुलरी तुम्हें आती है? क्या तुम्हें इन वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशंस आते हैं या नहीं? दीज आर 3000 वर्ड्स व्हिच आर commonly used in all over the world by the native speakers, by local speakers all over the world. These are the very common words. That's why they are called keywords. 3000 Oxford. आपको वेरीफाई करना है क्या आप इस सारे वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं या नहीं. अच्छा, कैसे वेरीफाई करेंगे? यू विल सिंपली लिसन. यार ये 1 घंटा 50 मिनट के, 10 मिनट तुमने आईपीए को सुन लिया, 1 घंटा 50 मिनट आज रात सोते हुए ये नहीं कि कान में लगा के सो गए.
क्या अपने आप दिमाग में बैठेंगे? नहीं, आंखें खोलकर एक एक वर्ड को देखते रहो। जैसे अभी ये चल रहा है, अब ये क्या लिखा हुआ है, इंग्रेडिएंट, इसको पढ़ रहा है, इनिशियल पढ़ रहा है, इनिशियल, इनिशियली। एक एक दफा सारे वर्ड्स को वेरीफाई कर लो, तुम देखना दुआएं दोगे। तुम कहोगे सर 200 वर्ड्स ऐसे निकले जो मेरी जबान से गलत निकले थे, और मैंने 1-2 घंटे में मैंने अपने 200 वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर लिया। स्टेप 1 यही है, मैं कहूंगा कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कर लें। मैं स्टेप 2 भी आपकी काबिलियत के लिए बता देता हूं, अगर आप ऐसा कर लें। देखो, जो काबिल लोग होते हैं उनके साथ पढ़ने का तरीका फायदा ही होता है कि उनको पता है कि आगे चल के और क्या चीजें काम आएंगी। बेटा स्पेलिंग भी कर लो, कल को राइटिंग में काम आएगा। देखो जितने वर्ड्स हैं, क्या इनकी स्पेलिंग्स भी तुम्हें आती है? बेटा वर्ड फैमिली भी कर लो। सर आप तो फैल गए, तो बेटा आप ही को फायदा है। वर्ड फैमिली से मेरे मुराद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो तुम्हें इसकी पूरी वर्ड फैमिली याद है? ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। और देखते रहो कि अगर ये नाउन हुआ तो नाउन कैसे बन गया, ये एडजेक्टिव है तो कैसे बन गया, ये वर्ब है तो उसमें क्या है, एडजेक्टिव में क्या लग रहा है। तो मैं फिर एक चीज और पढ़ा दूंगा, वो है किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाऊंगा तमाम स्टूडेंट्स को, सफिक्स और प्रेफिक्स। तो तुम्हें ये वाली बातें बहुत आसानी से, वर्ड बिल्डिंग वाली बातें, वर्ड फैमिलीज आसानी से याद हो जाती है कि इसका नाउन ये है, इसका एडजेक्टिव ये है। लेकिन मैं अभी आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स आपसे सिर्फ 3 है। बेटा पहले प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और वर्ड फैमिली, इन 3000 वर्ड्स की इस हफ्ते कंफर्म कर लो कि तुम्हें आती है। और फिर जब तुम बड़े होगे, थोड़े से अगले फेज में आओगे, तो फिर मैं आऊंगा, बात करूंगा मीनिंग्स पर, कि क्या तुम्हें इन तमाम वर्ड्स की मीनिंग्स आती है। अरे इन्वॉल्व का मतलब सर शामिल होना, सब आता है। इन्वॉल्वमेंट शामिल सर नाउन है। आयरन सर वो, सर आयरन धातु। इरिटेटेड सर मतलब किसी को तंग करना, बच्चों वाले वर्ड्स है सर। मैं तुम्हें इरिटेट ही खोल कर दिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा उसमें ये तुम्हें कितना इरिटेट करेगा। सिर्फ एक वर्ड गेट, आप कहते हैं गेट का मतलब हासिल करना। गूगल क्लासरूम की जब आपको एक्सेस मिले तो जाकर पढ़िएगा, मैंने गेट के 27 मीनिंग्स पढ़ाए हैं। गेट के, सिर्फ गेट के, जिसको आप लोग कहते हैं हासिल करना। मैंने गेट के आप तकरीबन तकरीबन जो मीनिंग्स पढ़ाए आपसे, आपको बताया कि कितने हैं, 27। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें आती है? कुछ नहीं आता बेटा हम लोगों को। ठीक है, तो असाइनमेंट 1 आपको मैंने अलॉट कर दिया है, वो क्या है, 3000 वर्ड्स को सुनिए, आईपीए को सुनिए, और अगर दिल चाहे तो 6 आवर्स का प्रोनाउंसिएशन कोर्स करें। सारे लिंक्स आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अब आते हैं दूसरी बात, सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। अल्फाजों की तरतीब, एक स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, ये असाइनमेंट है छोटा सा। कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स? क्या आप इन अल्फाजों को प्रोनाउंस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। 0317 029 6209, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, 0317 029 6209। आप इसका एक वॉइस नोट बनाएंगे और मुझे फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन मैं एडवाइस करता हूं पहले इन तमाम वर्ड्स को गूगल कर लीजिएगा कि इसका सही तलफ्फुज क्या है। मैंने कुछ लिखा है तो सोच के नहीं लिखा होगा। जो प्रोनाउंसिएशन आपको पता है वो गलत है, जो प्रोनाउंसिएशन आपको पता है वो गलत है। तो बेहतर ये कि आप हर वर्ड को पहले गूगल करें, उसका सही तलफ्फुज सुने, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करें और 24 घंटे के अंदर मुझे भेज दें। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। अब आ जाइए सिंटेक्स पर, अल्फाजों की तरतीब। सर एक बात तो बताइए, जी पूछिए। सर हमारी अंग्रेजी इतनी कमजोर क्यों है? वाई कांट वी स्पीक इन इंग्लिश, वाई कांट वी राइट गुड इंग्लिश? सर हम अच्छी अंग्रेजी बोल नहीं सकते, हम अच्छी अंग्रेजी लिख नहीं सकते, वजह बता दे सर प्लीज। आज आपके सामने से वो पर्दा हटा रहा हूं। जब ये पर्दा मैंने यूनिवर्सिटी में हटाया था, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के अंदर, ये लेक्चर मैंने वहां पर सबसे पहले डिलीवर किया था, कि हम लोगों को जिंदगी भर 4 वर्ड्स ही याद कराए गए, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब।
बेटा याद करो, हर चैप्टर को पढ़ा, बेटा डिफिकल्ट वर्ड्स याद करो, बेटा डिफिकल्ट वर्ड्स याद करो। वोकैबुलरी बेशुमार हमारे पास है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको नहीं पता आपके पास कितनी वोकैबुलरी है। अगर भी आप अपनी वोकैबुलरी को लिखना शुरू करें ना, तो आप अपने इर्द गिर्द में देखिए आपको कितने वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के, यार बहुत वोकैबुलरी है। दिल छोटा ना करें कि आपको कुछ नहीं आता है। देखिए मैं आपको ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं, डोर, चेयर, टेबल, फैन, फ्लोर, लैपटॉप, मोबाइल। तुम लोग क्या ये नहीं आते? अच्छा ये अरबी में बता दो मुझे क्या कहते हैं। सर हमें तो नहीं आती है, हमें क्या पता। अल्लाह का शुक्र अदा कर लो फिर कि तुम्हें अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। लेकिन मैं बोलूं ऐसे चाइनीज में बताओ डोर को क्या बोलते हैं, सर नहीं पता सर, आप तो ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर ये क्यों कहते हो हमें कुछ नहीं आता? भाई तुम्हें सब बहुत कुछ आता है, तो मेरे कंटेंट वर्ड्स बेशुमार याद करा दिए गए। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें स्ट्रक्चरल वर्ड्स नहीं आते, तुम उन अल्फाजों को जोड़ना नहीं जानते, क्योंकि तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया, तुम्हें बताया ही नहीं गया कि तुम्हारी लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम है वो आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और ऑक्सिलरी वर्ब्स की है। कल का जो मेरा सेशन है उसमें मैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, कल मेरी बात ही ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब से स्टार्ट होगी। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन ये आपका मसला है। यकीन नहीं आ रहा, नीचे एक सेंटेंस पढ़ लो। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. इसमें से जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो उड़ा दो। वही करते हो तुम लोग लिखते हुए और बोलते हुए। He went to Lahore, his friend PIA attend important event cancelled, he came back train Sunday। गलतियां यही तो होती है आपकी। आपकी गलतियां क्या है? आर्टिकल्स की और प्रेपोजिशंस की। आप सीएसएस का पेपर उठा ले, दोनों सवाल आते हैं, आर्टिकल्स भी प्रेपोजिशन भी। बीकॉम का पेपर उठा ले, एमडी कैट का उठा ले, ई कैट का उठा ले, बीबीए का उठा ले, जीआरई का उठा ले, सेट का उठा ले, आप आइल्स का पेपर उठा ले, कोई सा भी लैंग्वेज का पेपर उठा ले, वो आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन पर आपसे खेलता है। और आपने आज तक इससे खेला ही नहीं। आर्टिकल्स के लिए का मुझे अच्छे से याद है, हमारी टीचर ने कहा था बेटा ये दावते अकड़ बकड़ कर लेना। अब मैं क्या पढ़ाऊं 3 आर्टिकल्स, उनके रूल्स ही नहीं है। प्रेपोजिशन आर्टिकल्स तो बहुत आसान होते हैं बेटा, ये दा अकड़ बकड़ कर लो, क्या करना। एक एक नंबर का तो आता है ब्लैंक, अकड़ बकड़ कर लेना ठीक है ना, वरना गर्दन घुमा लेना। प्रेपोजिशन बेटा इसके तो रूल्स ही नहीं होते। कंजंक्शन बेटा ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। खत्म हमारी पढ़ाई, फिर ऐसी जिंदगी गुजर गई। इंटरव्यू हो गया, बैचलर्स भी हो गया, मास्टर्स भी हो गया, हर टीचर ने ऐसे ही कर कह के आगे धक्का दे दिया और अकड़ बकड़ करते रह गए। आज आते हैं किसी को, कोई बता दे मुझे आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस आते हैं? नहीं आते बेटा, नहीं आते। सर तो आप सिखा दे, हमसे क्या उम्मीद है, हम भी वैसों की तरह? नहीं भाई, जब मसला बताया तो सॉल्यूशन भी देंगे। आज रात को आपके पास आर्टिकल्स की पीडीएफ भी आ जाएगी, आर्टिकल्स का रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रेपोजिशन का रिकॉर्डेड लेक्चर। एक हफ्ते का टारगेट है, सुन लेना तो तुम्हें स्टार्ट मिल जाएगा। आज भी अगर मैं आज भी अपने आप को बादशाह नहीं कहता, आई एम चैंपियन, आई एम एक्सपर्ट इन आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस। लेकिन आप जब वो लेक्चर सुन लेंगे तो आपको कम से कम तमीज आ जाएगी। यू विल नॉट बी एन एक्सपर्ट। प्रेपोजिशन के बारे में गोरा कहते हैं द मोर यू स्टडी द मोर यू विल लर्न। जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। तो बस उसकी बात ही खत्म हो गई। आर्टिकल्स मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल, लेकिन ब्लंडर्स तो ना करो ना। ठीक है, प्रेपोजिशनल मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपने एक प्रेपोजिशन की गलती कर दी, दैट्स अ ब्लंडर। कंजंक्शन मेरे 2 महीने का जो कोर्स है उसमें शामिल। ऑक्सिलरी वर्ब मैं कल से शुरू कर रहा हूं, और कल की तारीख में मैं सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के इंजेक्शन ठोक दूंगा, देख लीजिएगा। कल जब आप सोएंगे और अगली सुबह उठेंगे तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब सारे आपके दिमाग में होंगे, आपके जबान से ऑक्सिलरी वर्ब निकल रहे होंगे। आपको ये भी पता होगा कि इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सा मेन वर्ब आता है। रात को नींद नहीं आएगी आपको, मैंने बता दिया मेरे लैंग्वेज कोर्स के बाद। आपकी सोच में अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगी, रात को ख्वाब आएंगे मैं अंग्रेजी बोल रही हूँ, जुमले बन रहे होंगे। ठीक है, चलो सेंटेंस फॉर्मेशन, मुख्तसर सी और बात रह गई है मेरी। हम एक जुमला बनाना चाह रहे हैं, पुरानी बात है, अब जनरल नॉलेज की बात है जो आपको स्कूल लाइफ में आपने पढ़ी थी। हम एक सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं, हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले तो 3 चीजें थी, अब मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो मैंने 4 कर दी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। मैंने 4 किए तो मैं 2 भी करूंगा। ठीक है ना।
सर रसीब टीचर्स अस एवरी डे, एवरी अलग डे अलग, सर रसीब हमें रोज पढ़ाते हैं। सर रसीब इज अ सब्जेक्ट, टीचर्स इज अ वर्ब, ऑब्जेक्ट अस, एवरीडे एडवर्ब। एडवर्ब से बुरा टाइम एक्सप्रेशंस। मैं इसमें से चाह रहा हूं कि एडवर्ब को मैं गिरा दूं, गिरा सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि मैं एडवर्ब को ड्रॉप कर दूं। मैं एडवर्ब को ड्रॉप कर देता हूं, मेरा जुमला फिर भी बन जाएगा। सर रसीब टीचर्स अस, मेरे जुमले में कोई फर्क नहीं पड़ा। शी कॉल्स मी, मेरा सेंटेंस अभी भी अपनी जगह पर है। ही प्लेस क्रिकेट, एडवर्ब के बगैर जुमला बन जाता है। क्या ये मुमकिन है कि मैं ऑब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर दूं? अगर आप इजाजत दें, ऑब्जेक्ट भी ड्रॉप कर दूं, एडवर्ब भी ड्रॉप कर दूं। सर आपकी मर्जी, आप टीचर है, सब कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आई अंडरस्टैंड। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, यानी कि इट मीन्स दैट वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन एडवर्ब, बट सब्जेक्ट को ड्रॉप करें। देखो तुम्हारे पास सारी एग्जांपल्स भी है, इसके बहुत तफसीली लेक्चर्स भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, अगर आप तफसील से सुनना चाहें वो भी सुन सकते हैं आप लोग। ठीक है, साथ में वो साथ में ही फॉरवर्ड करूंगा, आप उनको भी सुन सकते हैं। क्या मैं सब्जेक्ट को ड्रॉप कर सकता हूं? मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, मैंने एडवर्ब को ड्रॉप कर दिया, अब आप चाह रहे हैं कि मैं सब्जेक्ट को भी ड्रॉप कर दूं। तो बजाहिर तो दिख रहा है सर ने कर दिया है, बजाहिर तो दिख रहा है सर ने सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, नजर नहीं आ रहा। कॉल सारा, किल हर, वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट गायब हो गया। लेकिन रुकिए, एक खास रोशनी में देखिए, कॉल सारा, उससे पहले देखिए आपको कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा सब्जेक्ट दिख रहा है? यू, यू कॉल सारा, यू कॉल सारा। बोलते रहिए। इंपेरेटिव सेंटेंस की कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? इन इंपेरेटिव सेंटेंस, इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन। इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज हिडन, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। इट इज डेफिनेट, क्योंकि वो डेफिनेट होता है। बट मेरे सामने निदा बैठी है, मैंने निदा से बात हो रही है, मैंने कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, निदा उठी चली गई। मैंने ये नहीं कहा यू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सामने मेरे निदा है, मैं यहाँ पानी लेकर आऊं, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब एक चीज डेफिनेट है कि आप जिससे मुखातिब है वो आपके सामने है, तो आपको यू लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आपको गुस्सा आ जाता है, तू अपना मुंह बंद रख, यू कीप योर माउथ शट, तुम तो मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम तो खड़े मत होना, डोंट यू स्टैंड अप। गुस्सा आ रहा है तो मेरी बात सुनो, यू लिसन टू मी। अरे आप लीजिए ना, आप कबाब लीजिए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, लीजिए ना आप। यू हैव सम kebabs, you have some kebabs। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा, यू जब कब आता है? जब गुस्सा आता है, या फिर आपके ससुराल वाले आ गए, अब आप सामने वाले को आमादा कर रहे हैं, सर बात सुन लेना सर, सर सर, सर जी, यू जस्ट लिसन टू मी सर, सर जी आप बैठिए, यहाँ बैठिए, अरे आप, अरे नहीं मैं वहां सही हूँ, अरे नहीं नहीं आप यहाँ बैठिए, आप आमादा कर रहे हैं, यू जस्ट सिट हियर। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता, और वर्ब के बगैर तो जुमला नामुमकिन है। वर्ब के बगैर, सब्जेक्ट के बगैर भी हम जुमला नहीं बना सकते। हाँ ये मुमकिन है कि सब्जेक्ट को मुंह पे लाए बगैर हम जुमला बना सकते हैं, सब्जेक्ट को लिखे बगैर जुमला बना सकते हैं। लेकिन जब आप उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी सिटी स्कैन करेंगे, तो आपको उसमें एक्सरे रिपोर्ट में यू नजर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? मेरा आपसे थर्ड लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर आप लोग अपनी डिस्कशन क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, आ गए हैं। अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके नाम रखे गए हैं। एक का नाम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक का नाम होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है समथिंग,
और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद है somebody, ठीक है ना। I eat something, I like somebody. I eat something, I eat somebody तो नहीं हो सकता ना, I eat something होता है। और I like somebody भी हो सकता है, I like something भी हो सकता है। मुझे कोई चीज पसंद है, I like chocolate, I like Sarah, somebody हो गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, और जब दो ऑब्जेक्ट साथ आते हैं तो एक का नाम हम, एक को हम डायरेक्ट कहते हैं और एक को इनडायरेक्ट। समथिंग को हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अगर मैंने कहा आई आस्क अ क्वेश्चन और आई आस्क अली, मैं सवाल पूछता हूँ, मैं अली से पूछता हूँ। अब इस सवाल को, इस बात को मैं अगर यूं कहूं, मैं अली से सवाल पूछता हूं। अब इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे। याद रखो, याद रखो, याद रखो, अगर समथिंग पहले आएगा तो टू लगाना पड़ेगा। अगर समथिंग पहले आएगा तो टू लगाना पड़ेगा। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, अली को पहले ले आओ। आई आस्क अली अ क्वेश्चन, आई आस्क अली अ क्वेश्चन। अगर somebody पहले आएगा तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। आई गिव सादिया अ लेक्चर, आई गिव अ लेक्चर टू सादिया, ये तुम लोग ज्यादा सुन चुके हो। लेकिन आई गिव सादिया अ लेक्चर, ये स्टूडेंट्स कहते हैं ये गलत है। ये भी सही है भाई, मैं सादिया को लेक्चर देता हूँ, आई गिव सादिया अ लेक्चर। आई टीच सारा इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू सारा, एक ही बात है। सर एक बात तो बताइए जी, आखिरी बात पूछ सकते हैं आप। सर कभी आप एक ऑब्जेक्ट लगा रहे, कभी दो ऑब्जेक्ट लगा रहे, कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे, ये कौन है इन सबके पीछे, क्या मसला है? तो बेटा ऑब्जेक्ट के पीछे आप तब तमाम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है, और वो वर्ब कौन सा वर्ब है आपको मैं नाम बता रहा हूं, उसका काम बता रहा हूं, जहन में रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो बात मैं समझा रहा हूं और जहन में बिठा रहा हूं, उनको बातों को जहन में रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लिहाजा ये तादाद में ला तादाद है, इनको गिनने की और याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं तो दो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, और इसको डिक्शनरी के अंदर वी एन और वी डबल एन करके लिखा जाता है। आ गई बात समझ? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, नहीं ले सकते, और इनकी तादाद कम है, लिहाजा इनकी लिस्ट अवेलेबल है मार्केट में, हमारे नोट्स में, आप उनको देखकर याद भी कर सकते हैं। जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, तो सर फिर क्या लेते हैं? एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब। तीन एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, ही इज टायर्ड, ही ड्राइव्स स्लोली। पहले में प्रेपोजिशन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब। अच्छा, बर्ड्स फ्लाई, कुछ भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कुछ भी ना है, खाली वर्ब आ जाए। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब बेटा उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो याद रखिए उसका पैसिव भी नहीं है, ठीक है। एक आपको लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको लाजमी तौर पर सुनना होगा। बेसिक लेक्चर है, बुनियादी लेक्चर है। कुछ सेशंस मेरे आपको लाइव मिलते हैं, आपको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सेशन, उसको आप लाजमी सुन लीजिएगा। सब्जेक्ट इज अ वर्ड which comes in the starting of a sentence, object is a word which comes just after a word। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को में अगर आपको प्रॉब्लम है, आप बहुत अच्छे से इसको गो थ्रू करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको लेक्चर फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये वाला लेक्चर भी मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। अगला जो मेरा सेशन है आपके साथ, इसमें कुछ आपकी प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस भी अवेलेबल होती है नोट्स में, ये नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे आज की तारीख में। और ये आपके पास कल का जो मेरा सेशन होगा वो है मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। यहां से गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है, हम इंजन पे काम करेंगे, क्योंकि कल की जो क्लास में है वो हीरोइन हमारे सामने आएगी, यानी वर्ब, क्योंकि वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनता, और हीरोइन के बगैर भी फिल्म नहीं बनती, अधूरी है, ठीक है। तो कल का सेशन लाजमी अटेंड कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप वाकई ही इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक दफा फिर बता दूं, इसकी टाइमिंग्स नोट कर लीजिए।
ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तमाम क्लासेस जूम पर होती है, ये कोर्स आउटलाइन है, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है बेसिक के बाद, और ये आपका पूरा शेड्यूल है। ठीक है, 4000 वन टाइम पेमेंट पॉलिसी हमारी। फिर बता दें कि नवंबर के चार्जेस हैं, दिसंबर का कौन सी ऑफर्स आएंगी, दिसंबर की फीस अनाउंस कर दी है हमने अपनी, ये दिसंबर की फीस है। 5 दिसंबर से जो हमारे बैचेस स्टार्ट होंगे वो 3000 मंथली करो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम।